Okay, so we'll be solving illustration number 13 now on the basis of FIFO method. So I'll take one Excel sheet. Okay, I'll copy this format. Zoom it to a little. Okay. Okay, so this is going to be illustration number 13. Store ledger on the basis of FIFO. Okay, purchase, issues and balance. Okay, the year is already mentioned. Okay, what happens on first date? Look at this question. On 1st March, there is an opening balance. So absolutely there is no issue. 1st March, right, opening here, and in the balance column write 200 at the rate of 460. 200 tons at the rate of 460 per ton. So multiply them. The answer is 92,000. Okay, this is done. Block it. Let me know if this is little faster, because I am presuming that you are already aware of it. So I'll be little faster so that we can complete both the methods today itself. So we will be covering our chapter 2 also today. So be careful. If it is going little fast, you let me know. Okay. 2nd March, what happened? Issued 140 tons. So on 2nd March, there is an issue of 140 tons. कहाँ से issue करूं? बोलिए, कहाँ से issue करना है? 200 में से बैलेंस में से इशू कर देंगे, 140 में 200 में से 140 इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ 460. ठीक है. So what remains here? 200 में से 140 गया तो 60 will be remaining at the rate of 460. ठीक है. So this is done. ये 73 आया क्या? किस चीज का? ये रॉन्ग है. सॉल्व कर. Okay, 140 into 460, 64 600 आ रहा है बेटा. ठीक है, इश्यूज में. करेक्ट. ये आंसर इज करेक्ट. ओके, this is done. What happens next? On 6th March, there is a purchase. Purchase है तो mention कर दो 350 at the rate of 450. So multiply them. We already had this stock 60 at the rate of 460. ये था हमारे पास already. ठीक है. And ये 350 भी इधर पे ऐड हो जाएगा. करेक्ट है. 350 at the rate of 450. Okay.
Okay, this is done. Correct. Next, what happens on 8 March? 8 March, there is issue of 80 units. So कहाँ से issue करूं? 80 यूनिट इशू करना है. ओके, बैलेंस में से करते हैं. तो बैलेंस में तो ये 60 ही है, तो यहाँ से 60 हो जाएगा. रिमेन्स व्हाट? 90 इशू करना है ना, कितना? 80 इशू करना है. तो 60 होने के बाद भी 20 बचेगा, तो कहाँ से इशू करना पड़ेगा? 350 में से 20 इशू करना पड़ेगा. तो 60 एट द रेट ऑफ 460 तो है ही, ठीक है. 350 में से भी आपको 20 यूनिट्स इशू करने पड़ेंगे. करेक्ट. सो टोटल 80 यूनिट्स इशू करना है. As per FIFO method, we will first issue this, and then out of this 350, 20 units are required to be sold out because we need to sell 80 units. So what remains? 330 units at the rate of 450. That means 1,48,500. Correct. Is there any doubt? किसी ने unmute किया था इसलिए पूछ रहा हूँ. 8 March. What happens on 9th March? On 9th March, there is issue of 210 tons. Issue है तो we will write it here, and हमारे पास एक ही यूनिट है यहाँ पे, तो there is no other confusion. Only 210 units will be issued at the rate of 450. ये issue करना पड़ेगा आपको. क्या? So 330 में से 210 गया, ठीक है. 120 बचता है at the rate of 450. Formula is already there. Block this. Okay, 54,000 है ना. So what happens on 9th March? 210 units जो है वो आपके issue हुए हैं. Now all the units are destroyed. सारे खराब हो गए units, सारे जल गया, खराब हो गए, ठीक है. So अब क्या करना है? इशू करना पड़ेगा सारे के सारा. क्या हुआ? 16th मार्च को सारे यूनिट्स आपके गए, ठीक है. सारे यूनिट्स गए आपके. जो भी स्टॉक में रखा हुआ था बैलेंस, वो पूरा जीरो हो जाएगा. सो सारे इशू कर देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 450, ठीक है. पूरा बैलेंस आपको क्या कर देना पड़ेगा? इशू कर देना पड़ेगा, ठीक है. लॉस है ये आपका, तो यहाँ पे आपके पास अब कुछ नहीं बचेगा. इस दिन आप कंगाल हो गए 16 मार्च को, ठीक है. एनी डाउट? ये एक पॉइंट था जो न्यू है आपके लिए, हो सकता है न्यू. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया था आपको इससे रिलेटेड, तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे. इवन इफ देयर इज एनी इशू, लेट मी नो. सब इससे कर देंगे. यस, ठीक है. सो इस दिन सारी यूनिट्स आपकी खराब होगी, ऑल क्वांटिटी, नथिंग वाज रिमेनिंग, तो आप सारे इशू कर दो, ठीक है. ओके, अब परचेस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे. जब कुछ है ही नहीं तो सेल क्या करेंगे? परचेस करेंगे 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 470. इट इज 188,000, ठीक है. ये बैलेंस में भी यही आ जाएगा फिलहाल के लिए.
प्रीवियस कोई बैलेंस हमारे पास है नहीं, ठीक है, ब्लॉक दिस। Okay, what happens next? Next is on 24th March there is issue of 200 units. So 200 यूनिट्स आप कहाँ से इशू करेंगे? 400 में से ही करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एक ही यूनिट है आपके पास। Done. So out of 400, if 200 is going, then remaining is 200 at the rate of 470. 94,000 बचता है आपके पास, ठीक है। एनी इशू यहाँ तक के? आगे बढ़े, 27 को जाते हैं। 27th March there is a purchase of 100 units at the rate of 480. It comes to, ठीक है। So we already had this 200 at the rate of 470, ये already था हमारे पास। अभी 100 और परचेज हुआ है, इसको भी रख लो, ब्लॉक दिस, ठीक है। what happens next? On 29th there is a issue of 150 units। कहाँ से इशू करूँ 150? FIFO मेथड है, तो फर्स्ट वाले में से इशू करना पड़ेगा 200 में से। ओके, सो 50 बच गए उसमें से, और जो बाकी का था वो तो वैसे ही मैंने लिख दिया, जो हमने टच नहीं किया है। ओके, व्हाट हैपेंस लेटर? 31, देयर इज एक्सेस। तो एक्सेस कहाँ पे लिखते हैं? परचेस में लिखते हैं कि सेल्स में लिखते हैं? ज्यादा है आपके पास, शॉर्टेज नहीं हुआ इस बार, आपके पास ज्यादा है मटेरियल। सेल्स। श्योर? जा रहा है क्या आ रहा है? एक्सेस का अच्छा। मतलब क्या होता है? परचेज, हाँ करेक्ट, 50, ठीक है। Excess is found 50 tons due to wrong weighting during the month, ठीक है। अब रॉन्ग वेटिंग की वजह से आपको क्या हुआ? एक्सेस मिला है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है, और मुझे पूछना ये है कि बताइए भाई रेट कौन सा यूज करें, क्योंकि रेट वहां पर दिया नहीं। जल्दी जल्दी देखते हैं हमारे पास स्मार्ट स्टूडेंट कौन है, क्योंकि हमेशा दिया होता है ना, इस तरफ तो रेट हम लोग यूज नहीं करते, इस तरफ तो रेट दिया होता है, अभी दिया नहीं है रेट आपके पास। तो आप बताएंगे नहीं, हम लोग आगे जाएंगे नहीं, वेरी सिंपल। किसने बोला 480 यूज करेंगे? ओके, व्हाई? ऐसा कुछ है क्या जो बचा हुआ है वो 480 वाला ही है? ऐसा लिखा तो नहीं ना कहीं पे, देखो जरा। Excess found in stock 50 tons due to wrong weighting during the month। wrong weighting की वजह से वो हुआ है, ठीक है। $470, ठीक है, बिकॉज हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, तो हम लोग 470 से क्या करेंगे, उसको एंट्री कर देंगे, करेक्ट है ना। और तो कुछ है नहीं, और कुछ ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। 50 at the rate of 470, 100 at the rate of 480, and again 50 at the rate of 470, ठीक है।
I'll forward the attendance link. कहाँ पे attendance link है? स्टॉप करना पड़ेगा इसको. ओके, अटेंडेंस लिंक आपको फॉरवर्ड कर दिया है. प्लीज गिव द अटेंडेंस. Okay, so I will forward this in your group. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है बस. Okay, that's perfect. Is there any doubt, guys? Any doubt, any question? Or there are so many questions you can ask. Okay, this is forwarded to your group. So at the end, what we did, because we did not know the rate, we followed FIFO method and we used the first rate. So now you will say, can you combine it? आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, याद रखना. आप कभी भी स्टॉक को प्लस नहीं कर सकते किसी में. सो कहाँ पे ऐड होते हैं कभी भी स्टॉक? एट द एंड ऐड हो जाता है. ठीक है, यही आपको हमेशा फॉलो करना है. ओके, सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट मेथड. इसी क्वेश्चन को वी विल डू इट विथ weighted average. ओके, सो जितना आज ये कंप्लीट होगा उतना कंप्लीट होगा. ठीक है, जो रिमेनिंग रहेगा वो आपको करना है, तो ध्यान देना आप एकदम से. क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, ओपनिंग 200 एट द रेट ऑफ 460 पर टन, ये हो गया. एंड 2nd March, what happens? Issued 140 tons. So there is a issue of 140 ton. So यहाँ पे एक ही स्टॉक है तो वही लेना पड़ेगा आपको एट द रेट ऑफ 460. ठीक है, ओके, सो दिस इज डन. ये ब्लॉक कर देना है आपको. सॉरी, बैलेंस में कितना बचा? 60 एट द रेट ऑफ 460. ओके, डन. ब्लॉक कर दो इसको. What happens on 6th March? There is a purchase of
350 units, 350 ton at the rate of 450. So what is there? 60 is already there. And यहाँ पर एक एडिशनल आ गया है, वो भी आप लिखो. सॉरी, दिस इज वेटेड एवरेज ना. सो वेटेड एवरेज में आप क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, है ना. सो कंबाइन किसको किससे करते हैं, यूनिट को यूनिट के साथ में, ठीक है, और अमाउंट को अमाउंट के साथ में. कौन से अमाउंट, ये बैलेंस में 60 था, 350 और ऐड हो गया तो कितना हो गया 410, और अमाउंट में अमाउंट को ऐड कर दिया है, ठीक है. रेट कैसे मालूम करेंगे हम लोग, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, ठीक है. सो राउंड अप कर दो आप इसको, सॉरी राउंड कर दो टू नियरेस्ट 3, ठीक है. ओके, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, 60 ऑलरेडी था आपके पास, क्योंकि हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं इसलिए हम लोग यूनिट्स को मर्ज कर देंगे. तो 60 में और 350 प्लस हो गया तो 410. टू अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर देना है, ठीक है. और रेट कैसे निकालना है आपको, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, और 3 तक के राउंड कर देंगे उसमें, ठीक है. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस लेटर on 8 March. On 8 March there is a issue of 80 units. ये रेट आपको यूज करना पड़ेगा, 451.463 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है. इसको राउंड अप कर देना है कभी भी 36117, ठीक है. अमाउंट को आप राउंड अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन देयर इज अ सेल, तो आपके पास 410 था ऊपर, जिसमें से आपने 80 सेल कर दिया, तो बचा कितना आपके पास 330. ओके, यहाँ पर अमाउंट कितना था 185 100, जिसमें से ये अमाउंट आपको माइनस कर देना, और यहाँ पे रेट निकालना है. ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखना, ठीक है. एनी डाउट? ओके, now see what happens next. On 9th there is issue, once again there is issue of 210 units. तो आप यही रेट यूज करेंगे जो यहाँ पर है, ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. फ्रैक्शन पे डिफरेंस पे इतना नहीं जाना है बेटा, ध्यान रहे. 9487807. अगर आप परफेक्ट आंसर चाहते हैं तो इसको राउंड करो ही मत, तो भी आपको मतलब परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो वी हैड 330 यूनिट्स, जिसमें से 210 सेल कर दिया, बचा 120, और अमाउंट में से अमाउंट को माइनस कर दिया, और अब रेट निकालेंगे वापस से, ठीक है.
अगर आप यहाँ पे इसको राउंड अप अगर आप प्रॉपरली करेंगे, ठीक है, यहाँ पे राउंड अप ही नहीं करेंगे अगर आप, तो भी आपका आंसर प्रॉपरली आ जाएगा, ठीक है। सो ये आप कितने पे राउंड अप करते हैं वो आपको आंसर प्रॉपरली देगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप राउंड अप अच्छे से करेंगे, आप 4 तक के करते हैं, हम लोग को 3 तक के बोला था जब मैं कॉलेज में था तब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते थे, ठीक है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जितना ज्यादा राउंड अप अच्छे से करेंगे, 3 तक करेंगे, 4 तक करेंगे, आपको उतना ज्यादा परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। एनीवेज आपको इतना ध्यान देना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आप राउंड अप कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन यहाँ वहाँ चलता है, बट राउंड इट अप टू 3 तक के आप राउंड अप करो। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन होगा आंसर में, दैट इज ओके, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, 9th मार्च हो गया है। 10th मार्च को 16 मार्च को सारी यूनिट्स खराब हो गई, सब इशू कर देना है। 120 इस रेट पे आपको इशू कर देना है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे इशू हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, ठीक है। और क्या बचेगा बैलेंस में, कुछ नहीं, सेम इशू, उसमें कुछ और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। फीफो करो आप वेटेड एवरेज करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि परचेस हो गया तो यूनिट में ऐड कर दो, सेल हो गया तो यूनिट से माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट 20th मार्च, sorry, 20th March, what happened? Purchase of 400 units. 400 units at the rate of 470. तो इससे पहले कुछ था नहीं आपके पास क्योंकि सारे यूनिट्स खराब हो गए थे। सो जो बच गया है वो आपके पास यही है। तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। Now what happens next? On 24th March, on 24th March there is 200 units, sorry, सेल हुआ है, इशू है आपका 200 units का। So out of this you will issue at the rate of 470. ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो यू आर पेंडिंग विथ 200 यूनिट्स। अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करना है। रेट निकालने के टाइम पे कैसे रेट निकालेंगे? अमाउंट डिवाइड बाय रेट, ठीक है। सो आंसर विल रिमेन सेम क्योंकि अभी तक की मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं हुए। 24th हो गया। व्हाट हैपेंस ऑन 27th मार्च को there is a purchase, of 100 at the rate of 480. so 448,000 हो गया। ये 200 आपके पास ऑलरेडी था जिसमें 100 और आ गया तो 300 हो गया। अमाउंट में अमाउंट को प्लस कर दो, ठीक है। तो इसको और इसको प्लस कर दिया। रेट निकालने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं 3 तक के राउंड अप करता हूँ, मैं उतना कर दूंगा, ठीक है। आपको ज्यादा करना है, आप जितना ज्यादा परफेक्ट आप आंसर करना चाहते हैं उतना आप उसको राउंड अप ना करेंगे, नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आंसर आएगा, ठीक है। ओके, 27th हो गया तो 29 पे जाएंगे। 29 को देयर इज इशू ऑफ 150 यूनिट्स। 150 इस रेट पे इशू कर देंगे हम लोग फिलहाल।
ठीक है, तो इसको राउंड अप कर लेना है कभी भी, ये जो है 0 तक के राउंड हो जाएगा। दैट इज 71,000 हो जाएगा ये, ठीक है। और आपके पास क्या बचता है, 300 में से 150 गया तो 150 बचेगा, और 142 में से 71,000 जाएगा तो 71,000 बचेगा। वंस अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है, यही है। ये भी ब्लॉक हो गया, 30 का कुछ है नहीं तो डायरेक्ट 31 को एक्सेस फाउंड है। सो एक्सेस में क्या करेंगे हम, 31st मार्च, एक्सेस इज 50 यूनिट्स। कोई मल्टीपल रेट्स नहीं है, तो एक ही रेट है आपके पास, यही आपको यूज भी करना है, ठीक है। इसको राउंड अप कर लो, मतलब इसको पूरा राउंड अप आपको कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज पेंडिंग, 150 में से और 50 आ गया एक्सेस, तो 200 हो गया, और यहाँ पर ये भी आ गया। नाउ फाइंड आउट कि रेट क्या है। रेट आपका अप्रोक्सीमेटली 473.33 कुछ है। So once again explain 31st March. 31st मार्च को बेटा एक्सेस है 50 का, एक्सेस है तो आप कहाँ पे एंट्री करते हैं इसको, एक्सेस को परचेस में एंट्री करेंगे, करेक्ट है कि नहीं? Yes. हाँ, तो कौन से रेट पे एंट्री करेंगे, जो रेट आपके पास है। अभी आपके पास यहाँ पे फीफो तो नहीं है कि आप फर्स्ट रेट ले लें, है ना। यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट होता है, तो मैंने वेटेड एवरेज रेट ले लिया और उसको एंटर कर दिया है, और 150 था, 50 एक्सेस और आ गया तो कितना हो गया, 200। अमाउंट 200. पे अमाउंट को प्लस कर देंगे, और रेट मालूम करने के लिए सिर्फ इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको रेट पता चल जाएगा, जैसे नॉर्मली पता करते हैं Okay, अमाउंट। sir. Okay, so this is done. This is also forwarded to your group. Okay, let me know if there is any doubt, any question, any concern. So I have completed store ledger also. ठीक है, स्टोर लेजर ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा था, मेरा काम था मुझे भी थोड़ा बहुत आपको बताना था कि जो डिफरेंसेस है उसमें क्या करना है आपको। दैट वाज देयर, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से समथिंग एल्स इज इम्पोर्टेंट, तो वो भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, फीफो बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो देयर। नाउ चैप्टर इज ओवर, we have a test of this chapter, that is FIFO weighted average and material turnover ratio and your EOQ का कौन सा पार्ट बाकी था, टेबल, EOQ का टेबल बाकी था, ठीक है। बट नाउ आई विल इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आपको आई थिंक 30 क्वेश्चंस होंगे आपको उस बेसिस पे। फीफो का टेबल, मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑल्दो फीफो वेटेड एवरेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे इतने सारे, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा ये है, ठीक है। ओके, सो नाउ tell me if there is no doubt, then we will leave. No, sir. Okay, I'll stop.